₹20,668 કરોડના 2 હાઈવે પ્રોજેક્ટ કરાયા મંજૂર. નાસિક સોલાપુર એક્સપ્રેસ વેથી વેપાર અને રોજગારી વધશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં આજે દેશના માળખાગત વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે ₹20,668 કરોડના કુલ રોકાણ સાથેના 2 મોટા હાઈવે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ્સનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રીય કનેક્ટિવિટીને મજબૂત બનાવવાની સાથે ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ માટે મુસાફરી સુગમ બનાવવાનો અને આર્થિક ગતિવિધિઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પત્રકાર પરિષદમાં નિર્ણયોની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે આ યોજનાઓ વિકસિત ભારતના વિઝનને સાકાર કરવામાં પાયાની ભૂમિકા ભજવશે. આ મંજૂરીમાં સૌથી મહત્વનો પ્રોજેક્ટ મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ ચેન્નાઈ કોરિડોર હેઠળ ₹19,142 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામનાર નાસિક સોલાપુર અક્કલકોટ 6 લેન એક્સેસ કંટ્રોલ ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસવે છે. 374 કિલોમીટર લાંબો આ કોરિડોર નાસિક, અહલ્યાનગર, ધારાશિવ અને સોલાપુર જેવા મહત્વના ઔદ્યોગિક કેન્દ્રોને સીધા જોડશે. આ હાઈવેને કારણે ચેન્નાઈ અને હજીરા બંદર વચ્ચેની મલ્ટીમોડલ કનેક્ટિવિટીમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. આ એક્સપ્રેસ વે 100 થી 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી મુસાફરીના સમયમાં અંદાજે 45% જેટલો ઘટાડો થશે અને આ પ્રદેશ માટે નવી આર્થિક જીવાદોરી સાબિત થશે. કેબિનેટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા બીજા પ્રોજેક્ટમાં ઓડિશામાં નેશનલ હાઈવે 326ના વિસ્તરણનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 1,526 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ મુખ્યત્વે આદિવાસી અને મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જે ખનિજ સમૃદ્ધ વિસ્તારોમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપશે. આ બંને પ્રોજેક્ટ્સ BOT અને EPC મોડેલ હેઠળ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય છે. આ માર્ગો માત્ર પરિવહનના સાધનો જ નહીં, પરંતુ રેલવે સ્ટેશનો, એરપોર્ટ અને ગતિશક્તિ ઇકોનોમિક નોડ સાથે જોડાઈને ભારતના સંકલિત લોજિસ્ટિક્સ માળખાને વધુ शक्तिशाली બનાવશે. आज के कैबिनेट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, जिसका विवरण अभी दूंगा आपको. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है. चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज़ से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए. पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड. ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है. दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है. अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है. इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर. आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है. ये कॉरिडोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा. नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा. 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा. 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा. हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है. पिछले 10 वर्षों में whatever arbitration and other disputes the department had faced, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner, और उसके बेसिस पे कंसेशन अग्रीमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके. बहुत सारी चीज़ें जैसे जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे अप्रूवल, चाहे फॉरेस्ट का अप्रूवल हो, चाहे वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो, all the approvals will be taken well before the project is handed over for construction. लैंड का एक्विजिशन 90% लैंड, प्रोजेक्ट की लैंड अवेलेबल होगी तभी जाके प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे. जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं उन सब वेरिएशंस का प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होगा, सो दैट किसी के डिस्क्रिशन पे वो पेमेंट नहीं रहे.
और जब डिस्क्रिशन होता है तो उसमें बैंक्स एंड फाइनेंसिंग एजेंसीज दे टेक इट एज हाई रिस्क। तो इसमें रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है वंस वी हैव प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला। स्पेशली जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को जो रिपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू गिव द डिटेल्स ऑफ द न्यू कंसेशन एग्रीमेंट। So this is the largest value of BOT project ever taken up in our highway system. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस है इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा। 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवर ब्रिज बनेगा। इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 इयर्स का होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगी, 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। 100 kmph के लिए डिज़ाइन किया गया है, हाई स्पीड है रोड के हिसाब से। रोड और रेल में दोनों का हाई स्पीड की डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। रोड के हिसाब से 100 किलोमीटर्स की स्पीड रहेगी इसमें, एवरेज स्पीड। डिज़ाइन स्पीड कितनी? डिज़ाइन में मैक्स स्पीड 120 kmph रहेगी और हर जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर भी रेलवे स्टेशंस हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स हैं, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा। 2 पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, चेन्नई पोर्ट के साथ और हजीरा पोर्ट के साथ। और कोपरती और ओरवकल, ये दोनों जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, इन दोनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी।